Good morning, my dear students. Hope you guys are doing good. And exams are coming up. Hoping you guys are preparing and putting your sweat, blood, everything in this because education is a very important thing in life. Without education, we are nothing, right? Good. So today I have brought one important topic for you guys. That's 13 techniques, right? 13 techniques to improve, increase concentration power in children like you guys. You are children, right? You all are my children. So I have summed up techniques by discussing with seniors, my colleagues, books, and all, right? So these are 13 points. If you know these 13 points, sure 100% concentration will be there, right? So let's start. Number one, play focus games and exercises to build attention. See, thinking games. Nowadays, we are using all mobiles, gadgets, iPads, iPod, laptops, right? So, why cannot we train ourselves by this? See, you can train and strengthen your ability to concentrate and focus by planning concentration games that require thinking, planning, and the use of memory, like crosswords, crossword puzzles, jigsaw puzzles, card games such as memory and Uno actually improve attentions for you. Numbers, picture puzzles in which your younger, elder who has to look like in these days like we get newspapers. There's one crossword games, puzzle games. You have to make it a habit. Try to solve it. Maybe slowly means initially you may feel it little difficult, but you get interest. You know what are these things. Understand? You know what is crossword puzzle. One is you got to know what is jigsaw puzzle. So at least slowly you understand things and finally you will run through it. Sequencing. The link between sequencing and concentration is a strong one. Following recipes, setting the tables, and putting them in alphabetical order are great activities for kids who have concentration difficulties. See, everyone have slightly concentration difficulties because conditions are a little bit different. Understand? But it depends all on us how we can improve it. It depends all on our parents, okay, how we can improve them, how they can improve our concentration. So sequencing, second point is sequencing. You know what is when we have a table, like when we sit, leave out the table, when we sit for food here, mostly in Kashmir they prefer sitting down, right? So you see there are plates properly laid out. There are glasses that dishes are properly means laid out. It's not like for for one rice you have to get up and get it from that bowl. For another spoon you have to get the spoon, then you sit down. No, means we do sequencing. इसके बाद ये खाना है, ये करना है. So properly we sequence it. Number three, just sit. Right? Just sit. This game involves challenging yourself to sit in a chair without moving or fidgeting to see how you can do. Means जब हमें जब कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, आप देख लीजिए कभी आप किसी तन्हाई में, मतलब इट इज़ बेसिकली दिस चैप्टर इज़ फॉर एवरी वन, फॉर योर पेरेंट्स, for you, for me, for everyone. It is not only I'm just throbbing like no आपके लिए. It's a teamwork, right? So just आप कभी imagine कीजिए, आप बैठ जाइए किसी चेयर पे, ठीक है, sit विदाउट मूविंग. आपको मूव नहीं करना है. आपने बचपन में कभी मतलब बचपन में आप बच्चे ही हैं, अभी आप खेलते होंगे कभी, वो स्टैचू है ना, तो वो जो बच्चा होता है वो हिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है वो. सो दी बिकॉज उस टाइम उसके पास मतलब वो कंसंट्रेट करता है उस पर कि मुझे हिलना भी नहीं है. अगर मैंने थोड़ा सा भी मूवमेंट किया बॉडी का तो आई एम आउट, मेरे को पकड़ा जाएगा. सो दिस इज़ द वे. आप जब भी मतलब कंसंट्रेशन जब भी किसी चीज़ को करते हैं, मतलब उसको मन लगा के करना है, उसकी तरफ में एकदम दिमाग लगा के करना है. उस टाइम आपके दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए. तो ये स्टेप्स दिए गए हैं कि हम कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में.
जैसे थिंकिंग गेम्स मैंने बता दिया, सीक्वेंसिंग बताया, सिट डाउन बताया मैंने, जस्ट सिट और बैठ के वो चीज़ें करना है, वो एक्सरसाइज करना है कि जिससे हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाए। जस्ट आप आपने देखा है हम लोग जिम जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? बिकॉज इससे हमारी बॉडी को एक पोस्चर मिल जाता है, ट्यून्ड रहती है, ठीक है। तो इसी तरह हमें अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है। अगर हम ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो सोचेगा ही नहीं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर है घर में, हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे होगा? मतलब यूज़लेस है। आप देख लीजिए कभी अपने जब लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप देख लीजिए कभी जब हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, जब भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर, आप देख लीजिए एक फ़ैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है उसमें। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज इट जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट, उस हीट को उसको रेडिएट करना है बाहर। आप देख लीजिए कंप्यूटर का कुछ मत कीजिए, वो फ़ैन कभी ऑन नहीं होगा। अगर जस्ट ऑन करके छोड़ दीजिए और देख लीजिए उस लैपटॉप की तरफ, वो कभी वो हीट रेडिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो गर्म हो नहीं रहा है, वो अपने सीपीयू का यूज़ नहीं करता है, वो उतनी स्टैग्नेंट है। तो सिमिलरली ये सब चीज़ें हैं हमें ट्रेन करने के लिए। प्रिपेयर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, हमें मतलब ऐसा देखना है कि जो डिस्ट्रैक्ट चीज़ें हमें करती हैं वो हमें मतलब उनको हमें नहीं रखना है। मतलब मान लीजिए एग्जांपल, इफ़ आई एम सिटिंग डाउन इन अ टेबल, जो स्टडी टेबल है मेरा, और उसके सामने एक विंडो है, विंडो में कर्टन नहीं है, एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट आपको मैं फिर जस्ट जनरल आइडिया बता रहा हूँ। कर्टन नहीं है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, जाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप देख लीजिए जनरल जनरल थिंकिंग है कि हमारी नज़रें पड़ जाती है उस पर, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें मुक्त करना है, इन चीज़ों को हमें रखना ही नहीं है मतलब दिमाग में, या उस एनवायरनमेंट को कोशिश करना है कि ना रहे। लाइक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड सॉफ्ट लाइटनिंग हेल्प्स टू सेट मूड फॉर स्टडी, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, काशिफ यूज टू बी ए क्वाइट हाइपर ऑल द टाइम, बट आफ्टर I put a fish tank in his room, I found that he has calmed down quite a bit, says Noora. उसकी मदर बोलती है, I just think watching these fish calmly swimming around has had an amazing effect on him. Basically, इस जो नूरा है, काशिफ की मम्मी, उसने कोशिश की है, जबकि ये छोटा है, 4 years का है वो, हम आप लोग बड़े हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें फेस नहीं होती हैं, बट आप देख लीजिए उसने कैसा उसको मोल्ड किया। उसका मतलब बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था चीज़ों से, ऐसे वैसे। तो एक बार उसने क्या किया, एक फ़िश टैंक लाई घर में, उसमें फ़िशेस रखी। वो जो 4 साल का बच्चा था वो बार बार घूर घूर के देखता था वो फ़िशेस कैसे स्विम करती हैं। तो उसके आइडिया मतलब मन में क्या चलता है, वो कूल हो गया एकदम, सोचने लगा, मतलब उसका एक एनवायरनमेंट बन गया है कि सोचने पे मजबूर हो गया है, मतलब कि फ़िश कैसे तैरती हैं, वो क्या क्या सोचता होगा, और कंसंट्रेट करके सोच रहा है। बच्चा है, अब क्या सोचता है वो जाने, लेकिन वो जो भी सोच रहा है कंसंट्रेशन के हिसाब, मतलब एकदम परफेक्ट दिमाग लगा के सोच रहा है उसमें। Gadgets. Ideally, all gadgets, including television, iPads, cell phones, etc., need to be switched off during the and kept in different room to avoid distraction. If you need to use computer study, make sure that it is used only for studying and nothing else. एक जाहिर सी बात है, नॉर्मली आप देख लीजिए ये स्कूल्स हॉस्टल्स में इतने, वहाँ पे क्यों आपको अलग कर देते हैं स्टडी रूम को और एंटरटेनमेंट रूम को, ठीक है। आप देख लीजिए इन चीज़ों को अलग रखते हैं, मतलब बहुत ही कम जगह पे मिलेंगे आप जहाँ पे हॉस्टल्स में एक ही जगह पे टीवी होगा या एक ही जगह पे, बिकॉज ऑफ टाइम मतलब स्पेस कंस्ट्रेंट्स। लेकिन हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, मोर देन एनफ स्पेसिंग, इसीलिए हमारा चीज़ एज पर लेआउट है, जो मतलब स्टडी के हिसाब से मतलब जो बनाया गया है, स्टडी रूम अलग बनाया गया है, डाइनिंग अलग बनाया गया है, बेडरूम्स अलग बनाए गए हैं, और प्लेइंग्स मतलब प्लेसेस अलग जगह बनाएंगे, सो दैट कि एक दूसरे के साथ वो मिंगल अप ना हो जाए। यहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे और उधर वहाँ से शोर शराबा हो रहा है, कंसंट्रेशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इन जगहों पे जो ये मोबाइल जो है इनको हमें ऑफ़ करना चाहिए इस टाइम पे जब हम पढ़ाई करते हैं, या लैपटॉप पे जब हम जाते हैं। हमें मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैंने एक स्लाइड शो बनाया है, तो
आप अगर आप मतलब पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से भी कई बार डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं भी, क्योंकि मेरे बगल में मोबाइल था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आई थी जो मैं मिस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने भी समझा नहीं दिस पॉइंट का कितना वैल्यू है। मैंने चुपचाप करके वो अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ये स्लाइड शो प्रिपेयर किया और काफ़ी हेल्प मुझे मिला कि नहीं कंसंट्रेट करने में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीचेबल मटेरियल, ठीक है, कीप एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड एट हैंड सो दैट यू डू नॉट नीड टू गेट अप to get everything. All home books, crayons, textbooks, pencils, and even water can be kept on the table nearby. This also helps keep track on how much work is left and helps you to manage your time better. All this helps to improve focus and increase attention. वेरी गुड, समझ में आया इसका? तो हमें ये सब फॉलो करना है। नंबर 3, फीड योर सेल्फ ग्रीन एंड हेल्दी फूड। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए ये पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए, तो हम इसका भरपूर ख्याल रखते हैं। आपको टाइम टू टाइम क्या मतलब डेली वेजिटेबल्स, दाल्स, प्रोटीन्स, एकदम बैलेंस डाइट होता है हम सब लोगों का। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ये जस्ट एक चीज़ इसलिए मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप टेक शॉप पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे भी आप हेल्दी, वहाँ पे तो हेल्दी ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये बिस्किट विस्किट जितने भी है जो आपको लगता है ट्रांस फैट्स जनरेट करते हैं, तो कोशिश कीजिए उनको अवॉइड करने के लिए। जैसे कैफ़ीन है, ठीक है, बोलते हैं एक यूएस का रिसर्च है, shows that children have increased their intake of coffee and caffeinated energy drinks. ये कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी है मोस्ट जो है इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस गिव्स देम एन अनहेल्दी डोज ऑफ शुगर विच कैन लीड टू क्रैश ऑफ एनर्जी लेटर। जितना बॉडी में शुगर मतलब जमा होता जाएगा वो फैट्स बनते हैं, मोटापा आ जाता है, आदमी का फिजिक डिफॉर्म हो जाता है, एकदम चर्बी चढ़ जाती है मतलब अननेसेसरी प्लेसेस पे। तो वो एकदम डिमोरलाइज भी करता है, प्लस जो एनर्जी वो लेटर वो क्रैश भी, मतलब उसमें हेल्थ हज़ार्ड्स भी काफ़ी हैं। तो आपको मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि शुगर इनटेक को काफ़ी हमें कम करना है, बहुत कम करना है कि जितना रिक्वायरमेंट है। ग्रीन फूड्स, जैसे हम सैलड्स बनाते हैं मतलब और अपना ग्रीन गार्ड है, ठीक है, बिटर गार्ड है, पंपकिन है। सो दीज आर ग्रीन लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, दीज थिंग्स। इनकी वजह से क्या है, हमारा इनको प्रॉपर एनर्जी मिलता है हम इन चीज़ों से, और बॉडी को भी पूरा जो ब्रेन गेम, जो कंसंट्रेशन गेम है, ऑल बॉडी का गेम है, ब्रेन का गेम है। जब बॉडी सपोर्ट करेगा ब्रेन को, ब्रेन अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। मैं यहाँ पे दांत में दर्द है, पॉसिबल नहीं हो पाए। लेकिन हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, तभी हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं किसी भी काम में, किसी भी पढ़ाई में। Sorry. Eating healthy food has a direct link to how well we can concentrate, and there are different foods that help increase your concentration. Eating junk food or food rich in sugar makes you sluggish, really, while food rich in protein such as almonds, eggs, and lean meat have a stability to raise awareness and increase concentration levels. हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना है जंक फूड्स ना खाएं। जंक फूड्स से बॉडी में ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो हमें हैज़ार्डियस होते हैं हेल्थ के लिए। और मैंने आपको फिर वही बताया कि उससे बॉडी में कहीं पे डिस्कम्फर्ट होगा तो माइंड बेसिकली माइंड ही करता है ना उसको कि भाई हाँ तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे मतलब प्रॉब्लम है, मतलब कहीं पे भी कान में, दांत में, लाइक दैट। जब ये चीज़ें परफेक्ट होगी, ठीक है, जब एक प्रॉपर हेल्थ अच्छा होगा तो माइंड को ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ पे भी। नंबर 4, फिक्सिंग ए रूटीन टू फॉलो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रूटीन को तो वैसे भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा रूटीन बनाया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, या स्कूल जो चलाते हैं, मतलब मैडम प्रिंसिपल, वीपी सर, जो भी मतलब कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने ऐसा रूटीन बनाया होता है कि हर एक चीज़ को हम एक प्रॉपर टाइम दें,
ठीक है। हर एक गेम्स को टाइम दें, स्टडी को टाइम दें, रेस्ट को टाइम दें। तो यही एक बोलते हैं कि फिक्स रूटीन टू फॉलो। एक रूटीन, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर मैंने आज मॉर्निंग में 10 पुशअप्स करवाए गए या किए, मैंने भाई वॉलंटियरली मैंने किए, अपनी खुशी से किए, तो मुझे कल भी ये करना चाहिए, इंक्रीज ही करना चाहिए। बट ऐसा नहीं आज मैंने किया कल नहीं किया, परसों किया नरसों नहीं किया, नो। एक रूटीन, एक कंसिस्टेंसी, मतलब एक प्रॉपर कंसिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपने शुरुआत किसी चीज़ की है तो उसको जारी रखिए। या तो आप अल्टरनेट डेज में एक्सरसाइज करते हैं या तो कंसेक्यूटिव करते हैं, ठीक है, बट इसको कायम रखना है। आज किया फिर भूल गया, ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने आज एक नावल स्टार्ट किया है, एक बुक स्टार्ट की है, अगर मैंने दिमाग में रखा कि मैंने एक पेज पढ़ना है इसमें आज, तो मैं एक पेज पढूं और उसके हिसाब से मैं रेगुलरली इसको मेंटेन करूं, इस रूटीन को। सो लेट मी टेल यू एक एग्जांपल। अनीता है, मदर ऑफ 4 ईयर ओल्ड राहुल, हैज़ एवरीथिंग प्लान टू ए टी। उसने प्लान किया है चाय के लिए। राहुल जब आता है स्कूल से 3:30 बजे आता है, स्नैक्स खाता है, 4 बजे वो आई टेक हिम फॉर आउटसाइड। फिर वो बाहर उसको लेके जाती है मम्मी उस बच्चे को, ताकि वो नेबरहुड के जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा खेले कूदे, इंट्रैक्शन हो जाए, उनका सोशलाइज हो जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ये एक हैबिट बन जाती है। फिर 5 बजे at 5 p.m. he's back. He has a wash and he's a shower and all snacks and a study desk at 5:30. He studies or does homework till 7:30 p.m. After which he has his dinner and is in the bed 8:30. She says, ज़रूरी नहीं है कि 8:30 हम बेड पे जाएं। जैसे हम 10 o'clock पे बेड पे जाते हैं तो दैट इज़ आवर रूटीन, ठीक है, उस हिसाब से हम करना है। लेकिन एक रूटीन देख लीजिए आप, राहुल की मम्मी ने उसके बनाया है कि 4 बजे जब वो स्कूल से आता है एग्जाम्पल, तो फिर वो चाय पीता है, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता कूदता है, फिर आता है बच्चों के, फिर अपने घर में पढ़ाई करता है। तो हर एक चीज़ का उसने एक रूटीन बनाया है उसका। While we do not need to recommend it as Anita, it is important to maintain a schedule for you, even if it is a more flexible one. हमें यही जो अनीता जो राहुल की मम्मी है, यही फॉलो नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि यही हम फॉलो करें। हमें एक रूटीन फॉलो करना है जो हम पे बनाया गया है या जो हम बनाते हैं रूटीन। And this in turn helps to increase your concentration in studies. For example, Rahul knows that after playing he has to study, automatically gets into the study mode once he is done. Naps and breaks boost concentration. बोलते हैं कि जो नैप लेते हैं हम, पावर नैप लेते हैं हम आफ्टरनून में या फ्री टाइम में, वो नैप होता है 10, 15, 20 मिनट्स का वो नैप होता है। उससे क्या है, उससे हमारी जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है एकदम परफेक्टली काम करता है। हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन सेल्स को भी बीच में एक नैप चाहिए होता है। अगर आपको मैं सुबह से शाम तक बोलूँगा रन करने के लिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन एकदम प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के हिसाब से करना पड़ता है। वो बॉडी का वैसा ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरह ब्रेन में अगर हम दिन में पावर नैप ले लें 10, 15, 20 मिनट्स का, अब देख लीजिए हमारे कंसंट्रेशन पावर किसी भी चीज़ में जो हम करते हैं काम, जो हम खेलते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी कितना हद तक बढ़ सकता है। सॉरी। मोस्ट चिल्ड्रन आर एबल टू कंसंट्रेट बेस्ट आफ्टर ए गुड नाइट रेस्ट। आप देख लीजिए जब आप पूरी रात को आप सोते हैं ना अच्छे से, मतलब जो रूटीन फॉलो करते हैं, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप एकदम ना बॉडी पेन्स होती है ना कुछ होता है, एकदम फ्रेश होता है, कुछ करने की इच्छा होती है। आप कभी रात को सो जाइए 1 बजे 2 बजे, मॉर्निंग में आप देख लीजिए कोई यही रूटीन ही फॉलो नहीं, सम बॉडी पेन होता है एकदम, कि कई लोगों को हेडेक भी हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है हमें, तो प्रॉपरली हमें वो फॉलो करना है। A power nap for 20 minutes after school or in afternoon should also do not trick to increase the concentration. ठीक है, do the trick. मैं वही बोल रहा हूँ आपको फिर से कि अगर हम 10-20 मिनट का जो हम ब्रेक लेते हैं, पावर नैप लेते हैं, ठीक है, स्कूल के बाद या आफ्टरनून में, हमें वो एक ट्रिक बन जाती है इंक्रीज कंसंट्रेशन करने में। क्योंकि मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि दिमाग को वो एकदम रूटीन रेस्ट मिल जाता है, बॉडी के साथ, भाई बॉडी को तो मिलता ही है।
All bathroom breaks, hunger pangs, etc. should be taken care of before the study time begins, as they have the tendency to interfere the concentration. ये सब आपको दिमाग में रखना है. ये सब पढ़ाई के टाइम पे ऐसा नहीं कि वो करना है, ये पेन लाना है, बाथरूम जाना है. ठीक है, आपको पता है कि 5:30 बजे मुझे सेल्फ स्टडी जाना है, या 3 o'clock मुझे इस काम के लिए जाना है, तो आप 2-3 मिनट 5 मिनट पहले ही ये सब काम कर लीजिए. ज़्यादा लंबा टाइम खींचता है तो उस टाइम वो अलग ऑप्शन, मतलब एक एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं. तो आपको 20 मिनट्स में या 30 मिनट्स का एक क्लास है या 40 मिनट्स का एक क्लास है, आपको ब्रेक मिलता है बीच में 15 मिनट्स का, तो यू शुड डू इट. पानी पीना है तो पानी पी, बॉटल रख सकते हैं आप. ठीक है. डिवाइड बिगर टास्क इन स्मॉल टास्क. बोलते हैं कि जो ज़्यादा बड़े काम होते हैं ना, तो आदमी को थोड़ा डर लगता है पहले, ये इतना बड़ा काम है कैसे कर पाऊँ. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे घर में एक बच्चा है, बस टीचर ने उसको बोला था नंबर लिखने के लिए 1 to 100. तो यकीन मान लीजिए कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये सोच के ही वो बार बार बोलता था कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है उसकी लेवल का. लेकिन फिर मैंने ये इस पॉइंट पे ध्यान दिया और मैंने उसको प्रैक्टिकली वो करवाया. मैंने बोला ठीक है, हम 20-20 करके करते हैं, 1 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. और यकीन मान लीजिए आप मेरा कि उसने बहुत ही खूबी से वो काम किया. तो सिमिलरली यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है कि स्टडीइंग एन एंटायर चैप्टर इज़ इन वन गो इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू समटाइम्स. ज़रूरी नहीं है. आधे तो मतलब इंटरेस्ट के साथ जब होता है, जिसका कंसंट्रेशन पावर ऑलरेडी ज़्यादा है, अच्छा है, तो वो कर लेते हैं. लेकिन जिसका थोड़ा सा कभी कभी कंसंट्रेशन मतलब पावर मतलब नहीं रह पाता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कभी कभी ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने में आपको मुश्किल हो जाता है. सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू ब्रेक इट डाउन इनटू पेजेस or even paragraph, so that the children feels a sense of accomplishment or finishing a small task, and his will motivated him to continue. समझ गया? इट्स वेरी इजी. आप पे है ये, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं. दिस इज़ टू नॉट जस्ट फॉर द स्टडीज़ बट फॉर हाउस होल्ड कोर्स एज वेल. अभी जो है एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, नीता है, अंकित की दादी है वो, ठीक है. उन्होंने अंकित को बोला कि भैया उसका जो कबोर्ड है वो क्लीन करना है वीकेंड्स पे. काफ़ी वीकेंड से उसने बोला, लेकिन वो नहीं कर पाता था और एकदम आलसी होता था, उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है, आज आप इस कबर्ड का एक टॉप वाला शेल्फ मैनेज कर लो, ठीक है. फिर नेक्स्ट वीक बोला कि ठीक है, दूसरा कर लो. तो इसी तरह उन्होंने उससे काम भी करवाया और उस बच्चे का कंसंट्रेट भी हो गया कि हाँ कैसे करना है, और वो इतना ट्रेन हो गया कि अब वो खुद करता है ये सब काम, ठीक है. सो हर एक चीज़ को हमें कोशिश करना है कि डिवाइड करने के लिए, इजी पैटर्न बनाने के लिए. तो आज के लिए 6 पॉइंट्स काफ़ी है. विल कंटिन्यू विद अनदर 7 to 8 पॉइंट्स. टोटल आर 13. सो विल कंटिन्यू इट टुमारो. टेक केयर.